बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेड लॉग और ये हमारे हैं ग्रुप मेंबर्स। ये टेबल ऑफ कंडक्ट है, इसमें हम जितने आगे टॉपिक्स जितने भी हमने डिफ़ाइन किए उनके सबके नाम यहाँ पे हमने शो कर दिए। व्हाट इज़ रेड लॉग? इट इज़ अ सिंपल वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड कम्स इन हैंडी ड्यूरिंग द मीटिंग एंड द प्रोजेक्ट ऑडिट। इसके अंदर हम यूजुअली जो है क्या नाम है, रिस्क, assumption, issues and dependencies को हम लॉग करते हैं। To capture each of the four components of RAID, risk, assumption, issues and dependencies, early identification of RAID component in the project helps to prepare the strategies and action plans to fix them. Avoiding them may cost us or even may derail the project completely. Thus, to ensure a project success, one should capture these project degrees and never let them slip out of one's mind. It is not easy and feasible to store this overwhelming information in mind. It's better to document them. Luckily, RAID log is a place to capture and assesses all the RAID components and track their real-time status. Mainly four components of RAID: risk, assumption, issues and dependencies. What are risks? Risks are specific events or uncertainties that could possibly occur and adversely impact a project. Project team is responsible for managing project risk, identification, categorization, risk assessment, creation of risk response plan. असल में जो प्रोजेक्ट की सक्सेस है वो उसके लिए ये है कि जो भी रिस्क हो उसके लिए हम कोई प्लान बनाएं। तो जो कि हम रेड लॉग का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये रिस्क के साथ साथ उसके प्लान को भी हम लॉग करते हैं। नेक्स्ट इज़ assumptions. Capturing your project assumption plays a major role in project management. Many projects have experienced major delays because of project managers making a wrong assumptions, which later in project were revealed as false assumptions. So false assumptions leads to major delays in project. Therefore, you need to document your project assumption and ensure all the stakeholders sign off on these assumptions. Next, issues. Risks that occur turn into issues. Issues can identify at the inception of project. Issues in projects are roadblocks that have the ability to delay your project delivery or possibly shut down your project. Project manager is responsible to eradicate and mitigate issues for project teams. Next, dependencies. Input work and output work or data on which project is dependent on. So this means dependencies represent input work or data your project is dependent on for completion, and or the project may be dependent on output from your project. Dependencies must be monitored closely because they could create a major delays for your project and possibly shut down your project. From now on, Hassan will represent next slides. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन है और जो टॉपिक मैंने जो प्रेजेंट करना है वो है रेड लॉग। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग से ही बहुत से रिस्क और इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, और जैसे ही हम उसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो ऑन द प्रोग्रेस हमें बहुत से रियल टाइम बेस बहुत से इश्यूज हमें सॉल्व और उनको फेस हमें करना होता है। तो इस चीज़ को रिड्यूस और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें रेड लॉग जो एक प्रैक्टिकल टूल है हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये चीज़ करते हैं कि हम इनिशियल फेज से ही जो हम इसको इन्वायरमेंट स्कैन पूरा करते हैं कि हमें कहाँ पे रिस्क आएंगे, कहाँ पे हमारे कौन से रिस्क हैं, कौन से इश्यूज हैं। तो हम उसको पहले नोट डाउन चेक लिस्ट के थ्रू या हम जो टेम्पलेट्स जो मैं आगे प्रेजेंट करूँगा उसमें हम नोट डाउन कर लेते हैं कि फ्यूचर की चीज़ें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें आगे प्रोजेक्ट को आगे फ्लो में या जो हमें काम करना होता है उसमें बहुत से हेल्प आउट हो जाती है। तो हम पहले ही उसकी जो इन्फॉर्मेशन ज्वाइन हम कर लेते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे उसको प्रोजेक्ट को हम ट्रैक कर सकें, जो भी चेंजेस है उसको हम एक्सेस कर सकें कि क्या चेंज हुई है, उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकें और कहाँ पे हमने जो कौन से रिसोर्सेज हमें कहाँ पे लगाने हैं, कहाँ पे हमारी एफर्ट ज़्यादा लगनी है, जहाँ पे रिस्क आ रहे हैं वहाँ पे हमने जो एफर्ट लगानी है हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। स्टेक होल्डर को स्टेक होल्डर को हम ये बता सकें कि प्रोजेक्ट हमारे पास पूरा कंट्रोल है, हम उसको कॉन्फिडेंस में ले सकें। और मैनेजमेंट टीम जो हमारी एज अ इनपुट आ रही है, एविडेंस की जो हमारी इनपुट आती है, जो हमने इसमें जो चीज़ें हमारी आ रही होती हैं, जैसे आप जो रेड लॉग में हम शुरू में रिस्क और जो चैलेंजेस हम फेस जो हम नोट डाउन करते हैं तो वो एज अ इनपुट होती है मैनेजमेंट टीम के लिए जो इसको हैंडल कर रही होती हैं। हाउ टू यूज़ रेड लॉग, हम कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूज़ करने से पहले हमें सबसे पहले इसके रेड
कंपोनेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना होता है, हमने इसको एजम्पशन जो रिस्क हो गई हैं, जो इश्यूज और डिपेंडेंसीज, हमने इनको आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उनको हम एवोलेट क्रिटिकली हम उसको एवोलेट करते हैं, फिर हम रिव्यू पीरियड्स हम डिसाइड करते हैं, रिव्यूज हमने कितनी कहाँ कहाँ पे हमने इसको रिव्यूज करने हैं, हम प्रोजेक्ट बेस में हम स्टार्ट करके हम सारा कुछ उसको रिव्यू कर रहे होते हैं। हम जो मैंने भी आगे मैं टेम्पलेट बताऊंगा हम कैसे उसको डिटेल उसकी इंफॉर्मेशन हम कैप्चर कर लेते हैं पहले ही। तो जो हमने चीज़ें कंटेन करनी होती हैं वो आइटम्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन है, क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट हमने उसकी जो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इम्पैक्ट्स वगैरह सारे हमने लिखनी होती हैं, हम किस ऑर्डर से वो चीज़ चलेगी पूरे प्रोजेक्ट में, क्या प्रायोरिटी है, किसकी प्रायोरिटी हाई है लो है, तो हम ये चीज़ सारी आगे डिस्कस करेंगे। हमने स्टेटस उसका बताना है, एक्शंस प्लान, हमने क्या क्या स्ट्रेटजी कि हमने उसको कहाँ किस बंदे को साइन करना है, कौन बंदा है इसको किस स्ट्रेटजी के थ्रू अप्लाई करके रिजॉल्व करेगा, हम ये चीज़ें आगे आने वाले टेम्पलेट में आपको चीज़ें मैं आपको रिस्क लॉग टेम्पलेट के बारे में बताऊंगा, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें की डिटेल्स हमने देनी होती हैं। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट का नेम लिखना होता है, रिस्क रजिस्टर और जो लास्ट रिव्यू वगैरह के ऊपर डिटेल आपको नजर आ रही है। साथ ही हमने जो सबसे पहले रिस्क की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, उसमें हम सिर्फ थोड़ी बहुत रिस्क की डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे। साथ ही लाइक्लीहुड होता है, इसमें हमने 1 से 5 तक हमने इसको बेस चेक करना होता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है रिस्क की, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इम्पैक्ट, जो रिस्क लाइकली जो हैपनिंग है इससे कितना इम्पैक्ट हो सकता है हमारी प्रोजेक्ट की आउटकम में, और वो कितने स्वेयर किस्म के साथ ही आगे स्वेरिटी आ रही है तो हमारा वो कितने स्वेयर किस्म का होगा, हमने वो चीज़ें भी बतानी होती हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है मिटिगेशन प्लान। मिटिगेशन प्लान में हमने स्ट्रेटजीज और प्लानिंग हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, हमारी कैसी वो चीज़ें चलेंगी, हमने प्लान और स्ट्रेटजीज को यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें हमने डिटेल और बतानी है हम इसमें चीज़ें में लिखेंगे। जो इसका फिर अगले में हमने ऑनर किसको हमने रिस्पॉन्सिबल और किसकी ऑनरशिप हमने देनी है, हम उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि। और जो नेक्स्ट है स्टेटस, स्टेटस में हम करेंगे हेल्प टू ट्रैक द करंट स्टेटस ऑफ एनी रिस्क, हम उसका सारा कुछ रिस्क के बारे में हमने लिखनी है कि क्या उसका स्टेटस है, कि सॉल्व हुआ है नहीं हुआ वगैरह। नेक्स्ट चीज़ है कि डेट क्लोज। अब ये चीज़ जो है कि डेट क्लोज कि जिस बंदे को साइन हुआ था उसने ये चीज़ सॉल्व की है, क्लोज कर दिया नहीं किया, तो हम इस रिपोर्ट को हम देखें हम अपने इजीली हम इसको वो कर सकते हैं कि हमारा ये रिस्क अभी रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट जो चीज़ है वो एग्जम्पशन लॉग है, जो एग्जम्पशंस के बारे में मैं बताऊंगा। जो एग्जम्पशन में जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ हमने डेट राइज कब एक एग्जम्पशन हमने जो हम एज्यूम करते हैं चीज़ें कि ये हो सकती है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे कि डेट कब हुई है। फिर एजम्पशन डिस्क्रिप्शन, हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इनिशियल एजम्पशंस हम बता देंगे। रिस्क में हम रीज़न बिहाइंड द एजम्पशन मेड, क्या रीज़न थी, क्या चीज़ें थी, क्या ड्रॉबैक्स थी, क्या हम की वजह से हम एज्यूम चीज़ें कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि एक्शन और वैलिडेट, कि अब जो एक्शन जो हमने एज्यूमशन की थी उसकी हमने अब उसको वैलिडेट करके उसका क्या रिजल्ट आता है, हमने वो चीज़ें यहाँ पे बतानी है। और इम्पैक्ट ऑफ एज्यूमशन इज इनकरेक्ट, नेक्स्ट चीज़ है कि हमने जब अगर हमारी एज्यूमशन इनकरेक्ट है तो हमने वो चीज़ चेक करनी है कि अगर इनकरेक्ट है तो हमारे सिस्टम में इसका क्या बिहेवियर होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है स्टेटस। इसमें मैंने जो चीज़ अब दिखनी है कि अब जो स्टेटस आ रहा है, स्टेटस में हमने चेक करना है कि ये चीज़ एज्यूम हुई है, इसका क्या स्टेटस क्या चाह रहा है ओवरऑल प्रोजेक्ट में। जस्ट लाइक मैं एक एजम्पशन करता हूँ कि आज बारिश होगी तो एक मैच होगा, तो मैंने एक एज्यूम की एक स्टेट, तो अब हम इसको रीज़न ये थी मेरी एक्शन टू वैलिडेट में हम ये चीज़ करेंगे कि हम वेदर की कंडीशन देखेंगे कि क्या चीज़ है। अगर बारिश नहीं होती, मैं अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं कि अगर वो इनकरेक्ट आता है तो बारिश नहीं होती तो मैच होगा, तो इससे हमारे प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें होंगी, तो उसकी सारी स्टेटस वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ अकम पाशा। जो रेड लॉग के 4 कीज़ एरिया है उसमें जो तीसरे नंबर पे वो इशू लॉग टेम्पलेट है। इशू लॉग टेम्पलेट ये उन्हें मसाइल हो सकते हैं जिनको हल करने की ज़्यादा किसी भी प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट इन रुकावटों के साथ चलता रहे तो ये जो प्रोजेक्ट उसकी फराहमी में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने इसके जो अपने बेसिक फीचर्स उसमें सबसे पहले आता है इशू डिस्क्रिप्शन। इसमें ये होता है कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है करंट इशू की, दूसरे पे इम्पैक्ट डिस्क्रिप्शन होता है कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ड्यू टू करंट इशू की। इससे जो हमारे पास इशू है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, ठीक है।
वो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है इम्पैक्ट, कि इम्पैक्ट क्या होगा। इसमें इम्पैक्ट की हम रेटिंग बताते हैं 1 से 5 तक इसकी स्केल की रेटिंग होती है। जितना ज़्यादा इम्पैक्ट हाई होगा, ठीक है, उतनी उसकी हाई रेटिंग होगी। फॉर एग्जांपल 4 या 5 उसकी रेटिंग होगी, प्रायोरिटी। तो इसमें ये होता है कि बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी रेटिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन द रेटिंग हम प्रायोरिटी इसको सेट करते हैं कि इसको इशू को कब और किस स्टेज पर सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास मेडिटेशन प्लान होता है कि इससे इसको या जो इशू है उसको कम करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो लेकर यहाँ पे हमें ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो रिस्क और इसमें इशू है इसमें डिफरेंस होता है। जो रिस्क होता है वो एजम्पशन की बेस पे होता है, लेकिन जब जो हमारे पास इशू होता है वो करंट इवेंट जो होता है उसकी वो होता है। ठीक है, और उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि किसको ये इशू रिजॉल्व करना है, और स्टेटस चेक करते हैं कि स्टेटस दैट हेल्प ट्राई टू करंट इश्यूज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है डिपेंडेंसी। आती है लॉग एंड टेम्पलेट की। डिपेंडेंसी ये होती है कि एक काम जो कोई एक काम है वो दूसरे पे काम पे डिपेंडेंट करता है। तो जब तक एक काम उसके नतीजे नहीं आ सकते, दूसरे पे हम आगे नहीं चल सकते। ठीक है, तो अगर ये नहीं कर सकते इसमें, अगर इसको एक के रिजल्ट को नज़रअंदाज किया जा सकता है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि जो दूसरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो भी हमारे सही नहीं चलेगा, उसको हम आगे सही फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके प्रोजेक्ट की जो अगर प्रोजेक्ट लंबा हो जाए तो कीमत पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है। डिपेंडेंसी में जो फीड्स है उसमें सबसे पहले आता है डिपेंडेंसी डिस्क्रिप्शन, जिसमें इसकी वर्क डिपेंडेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। लोकेशन होती है कि हम सजेस्ट है वेदर इट इनबाउंड और इनबाउंड डिपेंडेंसी। आउटबाउंड ये होती है कि जो एक प्रोजेक्ट है वो रिलाइज कर रहा है किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी पे, ठीक है, जिसको एक खास टीम लेके चल रही है। और जबकि जो कन्वर्सली जो उसकी इनबाउंड है वो ये होता है कि जो हमारे पास है कोई एक पार्टीज है, ठीक है, और वो किसी खास टीम पे रिलाई कर रही है कि वो अपने नताइज तब करेंगे जब वो प्रीवियस टीम जो है वो अपने रिजल्ट दे। डिलीवरेबल्स हम ये करते हैं कि हमारे पास है इससे फील्ड्स हमने मेंशन द डिलीवरेबल्स टू बी प्रोड्यूस और रिक्वायर के जो हमारे पास से डिलीवर्स होते हैं उनको मेंशन करते हैं। डिलीवरी डेट, एक्सपेक्टेड डेट जो हमारे पास प्रोजेक्ट डिलीवरी की होती है वो हम देते हैं। उसके बाद अपने इंपॉर्टेंस देते हैं कि अपने स्केल उसका अपने मीडियम है, हाई है या लो है, जो हमारे पास है डिपेंडेंसी टास्क है उसका। और स्टेटस चेक करते हैं कि हमारे पास है जो करंट स्टेटस है वो क्या चल रहा है। उसके बाद हमारे इसके जो है प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं कि ये ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेटेजिक है। ठीक है, हेल्प इन कलेक्टिंग मैसेज डाटा, ये जो अपने ज़रा डाटा उसको कलेक्ट करने के लिए जो अपने रेड लोग है मैनेजमेंट टूल ये यूज़ होता है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम बचाते हैं इसके जो अपने रेड लॉग से जो प्रोजेक्ट मैनेज होते हैं उनसे टाइम बच जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन का शॉर्टकट है लेस हैसल टू फिगर आउट थिंग्स, मतलब एक इसमें ये कि अगर हमने कोई चीज़ हमें रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हमें ज़रा हलचल नहीं करनी पड़ती। इजीली एक्सेसिबल है वाइल कंट्रोलिंग डाटा। रेड लॉग डिसीजन मेकिंग इससे मोर कंसिस्टेंसी, एक तरतीब की सारी चीज़ें मैनेजमेंट टूल्स की जो होती हैं वो इसके साथ चलती हैं। एग्जाम्पशंस और क्लियर होती हैं और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हमें पता होती है। कॉन्स इसके जहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे, लेकिन वहाँ पे इसके नुकसान ये हो सकते हैं कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, मैनेजमेंट टूल है जो वाइडली यूज़ होता है, लेकिन इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रस्ट्रेटिंग रिव्यूज़, इसके कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग रिव्यूज़ होते हैं। तो अगर हम इसकी डिटेल में मतलब एक काम में को पकड़े तो उसको मैं ज़्यादा डीपली चले जाते हैं तो उसको हो सकता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट डेट है उसको डिलीवरी ज़्यादा हो जाए। तो उसके हमें एक तरतीब के साथ हर काम को करना चाहिए। अगर जो इसका पर्पज़ है वो लॉस हो सकता है अगर हम उसको एक जो कोई भी मैं एक टेक्निक उसको सेसरी नज़र से इसको देखें या अप्रोच को इसको अपनाएं रेड लॉग की, तो हमारा जो मकसद है वो यूज़ करने का वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, नीड टू अप्रोच ईच सेक्शन, मतलब रेड लॉग जो है उसकी हर सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको समझने के लिए एक डिफरेंट माइंड सेट चाहिए होता है, ताकि वो जो काम है वो रिक्वायर्ड थिंग वो बेहतर तरीके से हो सके। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Suleiman and I will be discussing about RAID log and how it's related to different process groups and knowledge areas we have studied in SVM on our course so far. So first comes planning process groups, which involves identification of risk, creation of risk response plans, and creation of log of assumptions. So in RAID log,
when risks are identified, we have to document them properly. So RAID log comes in handy to document these overwhelming kind of information, because we cannot store everything in our mind. So we have to document these risks and assumptions in RAID log. That provides a very efficient way to store information on how we can use RAID risk log templates and assumption log templates to store these risks and assumptions, and also can create a mitigation plan or response plan and how we are going to deal with that risk and assumption. So next is the execution process group, which involves the tracking of issues and tracking of risk. So when we have documented these issues and risks, we can actually track those issues and track those risks and how we have dealt with these kinds of issues and risk we identified in our project. RAID log and projects planning schedule management. So RAID log is helpful in sequencing activities and events for project network diagram or any other things for determining project dependencies, such as external dependencies, internal dependencies, hard logic dependencies, soft logic dependencies. When we know these dependencies we have documented in RAID log, we can actually plan and sequence activities properly using those dependencies in mind. So project assumptions also a condition in activity duration influencer that affects duration of estimates. When we assume things, there must be an accuracy of how they are accurate in terms of working and how these are useful in our project. So when these more accurate the information is, the more easy we can do our project activities. So in order to store these, in order to perform these actions, we have to store these assumptions or any other things we have in our mind, so that we can work on these assumptions in our project. So assumption logs in RAID are helpful in determining accuracy of those assumptions and making scheduling tasks easy and doing our work more efficient. RAID log and risk management is very helpful in creation of risk database, as it involves documenting identified risks and tracking the response plan we have created to actually deal with those risks. So it is RAID log also comes handy in risk management. It is also helpful in implementation of risk responses that we have already stated in risk template, risk log template, how we are going to tackle those risks in our project. And it is also helpful in risk analysis, such as which can be of a qualitative ones or quantitative ones. So risk log is also very helpful in doing risk analysis and making our life project and activity more easy. These are the URL references we have used in our project. You can see. That's it. Thank you.